about the introduction to the community medicine. This is our very first lecture of the community medicine. In this lecture, we will mainly focus on the definition and the certain level of the prevention and the certain terminology which is used in community medicine. The first one is the definition of the community. In community medicine, we will mainly focus on community. What is community actually? So community is a large number of individual which is living and together for in a defined geographical area और जिनके जो है वो common interest and goals हैं the way of lives. इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं कि community is a group of people who having a things in common or who recognize and aware of their commonalities या commonality. एग्ज़ाम्पल क्या होंगी उसमें वो जियोग्राफिक कम्युनिटीज़ होंगी, वो हेल्थ केयर कैचमेंट्स एरिया होंगी, डिस्ट्रिक्ट होगा, प्रोविंस होगा, कंट्री होगी एंड ए स्पेसिफिक पॉपुलेशन ग्रुप आइदर वो बाय द एज भी हो सकती है, वो जेंडर के से भी हो सकती है, वो आपको सकती इथनिसिटी के लिहाज से भी हो सकती हैं, वो रिलीजियस पर्पसेस के लिए वो हो सकती हैं, तो वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हो सकती हैं. अच्छा कम्युनिटी मेडिसिन को हम डिफ़ाइन इस तरह कह सकते हैं कि इट्स अ सिस्टम ऑफ डिलीवरी ऑफ कम्प्रहेंसिव हेल्थ केयर टू द पीपल बाय हेल्थ टीम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी. दिस इज़ व्हाट डब्ल्यू एच ओ सेड कि एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे लोग जो है वो जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं वहाँ पे वो हेल्थ को प्रमोट करें फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट कम्युनिटी हेल्थ. इसको एक और तरीके से डिफ़ाइन करते हैं कि दिस इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीज़, promoting health and prolonging life through the recognized organized effort of a society. अब ये सोसाइटी जो है वो किन की है, ये जो प्रमोशन है, प्रिवेंशन है, प्रोलॉन्ग लाइफ जो है वो इज़ अ पार्ट ऑफ दी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है उनकी जॉब है. सो इट डील विद द हेल्थ ऑफ द होल पॉपुलेशन, जो कि वहाँ पे look after the community population itself as a patient and deal with the community as a social system and with the structure, function and dysfunction of that such systems. Community medicine जो है वो ये एक नई branch है of the medicine which is often considered synonymous with the preventive social medicine या preventive medicine, public health and the community health. All these share common grounds जिसमें आपके prevention of the diseases, promotion of the health. यहाँ पे अगर हम बात कर रहे होते हैं पब्लिक हेल्थ की, we will mainly focus on the disease prevention and promotion of the health. If we are talking about the prevention of social medicine, the main goal of our study should be the prevention of the disease and promotion of the health of the individual or community. These terms are often interchangeably used. The aim क्या होगी पर आपके preventive medicine की या जो community medicine है, so are to promote and preserve health in individual and community by adaptation of a healthy lifestyle and health education, prevent and limit disease, since enhance the quality of a healthcare system and assure that all the population have access to appropriate and cost-effective care, and to use epidemiology to access and monitor the health of the communities and population at a high risk or to identify the problems. फिर आप बात आ जाती है प्रिवेंशन की. सो प्रिवेंशन क्या है? इट इज़ एंटिसिपेटरी एक्शन which is taken to reduce the possibility of a certain events, outcomes or condition जहाँ पे ये या जो डेवलपमेंट्स हैं या हम जो डैमेज है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं दैट मे बी रिजल्ट फ्रॉम द इवेंट्स और द कंडीशन इफ इट डज अकर. अब प्रिवेंशन मे बी टेक प्लेस एट एनी पॉइंट्स. वो आपके अगर फॉर एग्जांपल अर्ली डायग्नोसिस में भी प्रिवेंशन कर सकते हैं और बिफोर द आउटकम जो एक्सपोजर है उससे भी पहले भी आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, आफ्टर द एक्सपोजर भी कर सकते हैं, आफ्टर द डिजीज़ डायग्नोज भी कर सकते हैं आप, आफ्टर द डिजीज़ प्रोग्रेशन से भी कर सकते हैं. सो देयर आर सर्टेन लेवल ऑफ द प्रिवेंशन. उसमें हम बात कर रहे होते हैं विच इज़ द पीरी मॉडल प्रिवेंशन. 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, उसमें फर्स्ट आ जाती है प्री मॉडल प्रिवेंशन विच इज़ एक्ट ऑन रिस्क फैक्टर्स. जहाँ पे जो एक्सपोजर है वो आप अवॉइड करते हैं. कंसिस्ट ऑफ एन एक्शन एंड measure दैट इनहिबिट द इमरजेंस ऑफ a risk factor in the form of environment, economic, social, behavioral condition and culture pattern of a living disease. फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल हेल्दी है इंडिविजुअल है,
वो एक्सपोज हुआ है और उसको जो है वो डिजीज़ एंड एक्सपोजर के बीच में जो है वो आप उसको करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। जो हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको आप डिजीज़ में कन्वर्ट नहीं करते। ये आपका पीरियड मॉडल, मतलब डिजीज़ होने से पहले पहले जो है आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय अडॉप्टिंग द हेल्दी इन्वायरमेंट, बाय अडॉप्टिंग द हेल्दी बिहेवियरल सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। जो प्राइमरी प्रिवेंशन पे हम बात कर रहे होते तो वहाँ पे क्या करती है कि एक्ट बिफोर डिजीज़ अकर। डिजीज़ अगर होने से पहले जो है वो आप प्रिवेंशन करते हैं। जो प्री मॉडल है वहाँ पे हमने क्या करती है, वहाँ पे रिस्क फैक्टर के ऑन होने से पहले पहले जो है वो आप प्रिवेंशन करते हैं। प्राइमरी में आप जो डिजीज़ अकरेंस से पहले जो है वो आप प्रिवेंशन कर रहे होते हैं। सो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू प्रिवेंट ऑनसेट ऑफ अ डिजीज़, वी एक्ट बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ द साइन एंड सिम्टम ऑफ द डिजीज़, जिसमें हम बात कर रहे होते हैं immunization की, ban on smoking, speed limit, seat belts. This all the examples of the primary prevention. Secondary prevention will act on disease occurrence, जिसमें early identification of the health problems, diagnosis of the health problem to reduce the risk of the progression or the transmission. एग्जाम्पल उसमें आ जाती हैं कि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ एच टी डी एम, सर्वाइकल कैंसर, breast cancer, STDs, sexual transmitted disease. So these are an example of the secondary prevention. While talking about the tertiary prevention, so we mainly focus on the acting after the complete complications occurrence. So focused on the rehabilitation to reduce the impairments, like example उसकी आ जाती है कि learning to walk after the stroke. यहाँ पे आपको ऑलरेडी डिजीज़ हो चुका है बट यू कैन रिड्यूस द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज़. Adjusting diet and health, जो lifestyle after the myocardial infarction, learning to live with DM. Uh, जो ये these are the preventive tertiary prevention. So prevention is any intervention that seek to reduce or eliminate diagnosable condition or may be applied at individual level, is in immunization, community level पे हम बात करें तो chlorination of the water supply. अच्छा हिस्ट्री की बात हम कर रहे थे तो द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी प्रिवेंशन वाज नोन टू द मैनकाइंड फ्रॉम द हिपोक्रेटिस, जो है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था, उससे पहले भी था. बट इन अर्ली ह्यूमन सिविलाइजेशन यहाँ पे जो दैट पोल्यूटेड वाटर जो है और लेक ऑफ प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल में बी द वेक्टर बोर्न डिजीज़ ये माना जाता था. बट रोमन टाइम में जो है फिर ये इट वाज वेल अंडरस्टूड दैट प्रॉपर डाइवर्जन ऑफ द ह्यूमन वेस्ट वाज ए नेसेसिटी टेंट फॉर द पब्लिक हेल्थ इन अर्बन एरिया. फिर उनने प्रॉपर जो लेटरिन कमोड सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ था. So the practices of the vaccination did not become prevalent until 1820s following the Edward Jenner, जहाँ पे उन्होंने काम किया हुआ था. The science of epidemiology जो है वो जो जॉन स्नो था, he was an anesthesiologist by profession, but बाद में जो है father of considered to the father of epidemiology, वहाँ पे कोल्ड आउटब्रेक को जो है वो डायग्नोस किया होता है इन लंदन यूके में. So the microorganisms were first identified in 1980s by the germ theory of the Robert Koch and Louis Pasteur. And the production of the artificial vaccine revolutionized by the study of the infectious diseases introduced in the modern era of the public health. पब्लिक हेल्थ जो है वो बिकम एन इम्पॉर्टेंट स्पेशलिटीज़ जो डेवलप कंट्रीज़ में है आफ्टर द अर्ली 19th century में. और जो डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ हैं एंड प्रोग्राम जो है वो जो क्या रिक्वायर्ड होती है इंटरसेक्शनल कोलाब्रेशन, ताकि वो अंडरस्टैंड करे टू फाइंड आउट द काज एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़. उसके बाद जो मेडिसिन है वो एक एंशियंट प्रोफेशन है जो कि डेवलप जो कि इवॉल्व हुआ था टाइम के टाइम जो है वो फर्दर आफ्टर डिफरेंट सिविलाइजेशंस में. अनटिल द 18th century में जो है वो क्या होता है कि जो डॉक्टर्स थे वो वेरी जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे जो कि हर डिजीज़ का जो है वो ट्रीटमेंट कर रहे होते थे. उसके बाद जो 20th century में ये था कि वहाँ पे उन्होंने मेडिसिन को जो है वो विटनेस किया एज अ रोशनाइज जो है वो. और उसके बाद फिर उन्होंने कंसिडर किया कि सब स्पेशलिटीज़ जो है वो होनी चाहिए. उसके बाद जो है फिर मेजर 4 स्पेशलिटीज़ हुई अर्ली 20th century में. फर्स्ट पे उस पे था जो क्यूरेटिव मेडिसिन था, जनरल सर्जरीज थी. जनरल सर्जरीज जो मेडिसिन थी उस पे पीडियाटिक एंड गायनिकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो ये चार, क्यूरेटिव मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाटिक एंड गायनिकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट. यहाँ पे जो हम कहते हैं MBBS, तो वहाँ पे मेडिसिन एंड सर्जरी जो है वो बैचलर्स होते हैं. तो ये उन दोनों पे बाद में फिर वो स्पेशलिटी करते हैं और उसके बाद जो है फिर सर्टेन कंडीशन में चले जाते हैं.
सो यहाँ पे जो प्रिवेंटिव कम्युनिटी मेडिसिन है वो स्टैंड हैंड बाय द हैंड विद द अदर स्पेशलिटीज, जो कि कंसंट्रेशन मोर ऑन द प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्रिज बिटवीन द मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। जो फैमिली मेडिसिन है वो स्पेशलिटी वाज रिकॉग्नाइज्ड इन यूरोप एंड अमेरिका इन 1950s, आल्दो जो कि एक न्यू एंड मॉडर्न स्पेशलिटीज़ हैं फॉर द फॉर जो कि हम कह सकते हैं कि द फादर ऑफ ऑल मेडिकल स्पेशलिटीज़, जो कि रिजेंबल है मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ। यहाँ पे ये क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो है वो रेगुलरली एक सर्टेन एपिडेमिक्स को जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। और ये जो फैमिली मेडिसिन है ये कहाँ पे जो है वो उसकी जो रिजेम्बलेंस है, जो अपेरेंस है वो क्यों हुई थी, बिकॉज जो पोलियो वायरस थी, जिसकी जो एपिडेमिक्स थी, रेगुलर वेव्स थी ओवर दी केसेस 1954 में, और वहाँ पे 18,300 केस जो है वो अपेयर हुए थे 1950 में। वहाँ पे ये इसको काफ़ी खासी इंपॉर्टेंस जो है वो मिली थी। उसके बाद जो है फिर यूएसए में, जहाँ पे जो रोबेला एपिडेमिक्स अकर हुआ था, वहाँ पे तकरीबन एवरी 6 to 9 year old जो है वहाँ पे 1964 में जो 22 मिलियन लोग जो है वो इन्फेक्ट हुए थे रोबेला वायरस से। काफ़ी जर्नी हुई थी। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो है वो हम बात करें थे, तो यहाँ पे जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है उसकी जो बर्थ हुई थी वो इस तरह हुई थी कि हर एक फॉर एग्जांपल एक सर्जन है जो कि अपने स्किल को जो है वो प्रमोट कर रहा होता है, उनकी ये स्किल्स हैं। उसके बाद जो है फिर जो वो जो दूसरा सर्जन है वो से डिफरेंट कर रहा होता है। तो अब ये हो गया कि अगर आप उस सर्जन ए के साथ बैठ जाए तो वो अपने जो प्रोसीजर उनकी जो है वो सिग्निफिकेंस जो प्रोज है वो बताता है। अगर सर्जन बी के साथ आप बैठ जाते तो फिर वो सर्जन ए की जो टेक्निक्स है उनको डाउट करता और अपने जो टेक्निक्स है उनको फिर वो अप्रिशिएट कर रहा था। अब हमने किसको फॉलो करे होते हैं, हमने इसको फॉलो कर, तो फिर जो रिसर्चर्स हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट है, वो बैठ गए, उन्होंने तीन चीज़ें कलेक्ट की हैं। एक सर्जन स्पेशलिटीज़ पे, दूसरा उस स्पेशलिटी या उस सब्जेक्ट या उस प्रोसीजर में उन्होंने मेटा एनालिसिस किए, मतलब रिसर्च कंडक्ट की, कौन से मेथड को उन्होंने मतलब जिस पे आर्टिकल पब्लिश हुए थे उन सारी आर्टिकल को कंबाइन स्टडी किया और एक स्टडी पब्लिश की जिसको मेटा एनालिसिस कहते हैं। तो मेटा एनालिसिस रिसर्च और जो फिजिशियन जो एक्सपर्टीज़ है, एंड थर्ड जो फिजिबिलिटी ऑफ द पेशेंट, इन तीन चीज़ों को मिला के उन्होंने एक कंबाइनली एक प्रोसीजर जो है वो इंट्रोड्यूस किया या एक मेथड इंट्रोड्यूस किया। इसको आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। मतलब वो प्रोसीजर करेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके एविडेंस बेस्ड हो, कि ये रिसर्च ये कहती है ये अच्छा है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा है। सही है। तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में हम यही पढ़ते हैं। प्रिवेंटिव मेडिसिन साइंसेज जो है वो वही है कि जहाँ पे जस्ट लाइक दी जो पब्लिक हेल्थ है, so included sets of biological, epidemiological, statistical, social, economical sciences and practices intended to measure, protect and promote health on a population level. It's provide an exciting opportunities for the physicians who are interested in development skills in clinicals and preventive health services to promote health and reduce the risk of the diseases, disabilities and death in individuals and populations. पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है वो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपके इन्फेक्शियस डिजीज़ है, टीबी, मलेरिया, माल न्यूट्रिशन, poor health education, limit access to health services. These all are the public in concern in the developing countries. While in developed countries उसमें आपकी chronic disease है, ischemic heart disease, hypertension, diabetes mellitus, so overnutrition, obesity, violence and drugs addiction, environmental pollution, air pollution, ozone layer depletion, ये पब्लिक हेल्थ कंसर्न है इन डेवलप कंट्रीज़ में। स्कोप ऑफ द कम्युनिटी मेडिसिन में आप बात करें तो वहाँ पे मेडिकल स्टेटिस्टिक्स हैं, न्यूट्रिशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, जनरल एपिडेमियोलॉजी है, प्राइमरी हेल्थ इंक्लूड जिसमें आपकी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ आ जाती है, मेंटल हेल्थ, जीरियाटिक हेल्थ आ जाती है, एपिडेमियोलॉजिकल एंड कम्युनिकेबल डिजीज, एपिडेमियोलॉजी ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, environmental health, healthcare administration. These all are the scope of the community medicine. This was all about the introduction of the community medicine. If you have any question, you can ask me. Thank you so much.